दैट इज कैपेसिटी। कोई भी फिल्ट्रेशन हो उसकी कैपेसिटी और साइज हम, एंड दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन व्हाट, वाटर रिसोर्स एंड द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर, दैट इज कार्बोनेट, आयरन, that water supply, and kind of nutrients or chemical stock solution that is to be injected. ओके जो भी फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, केमिकल इंजेक्ट करते हैं। तो वो डिजाइन किस पे डिपेंड होती है, कौन सा फिल्टर आप यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज प्राइमरी फिल्टर, वेदर इट इज सेकेंडरी फिल्टर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट फिल्टर, एंड व्हाट इज द डिपेंडिंग सोर्सेस। ओके and the type of filtration to be used is carefully selected at the planning stages. Okay, जब आप planning करते हैं, that we have to need to select that filtration unit as properly according to the quality of the irrigation water, presence of various substances in it, and with respect to the specific requirement of the system. Okay, what is the requirement of the system that we are going to consider while we planning the filtration system or type of filtration unit. If suppose if a hydrocyclone and sand separator is required, make sure that it should flow rate arranges the plant system. Okay, okay, it is an example. Suppose if you are installing a hydrocyclone separator, so you have to sure that the flow rate should be, it is in the range that you have to plant, and the quality and river specification determine filtration type. Also important, if the water quality is proper, okay, if water quality is not proper, so that may create the clogging problems in rivers. Okay, so you should be that should be determined with the based on what, the filtration type, level, that is effective size of the mesh, and the quality and the quantity of the, and the quantity, and the most irrigation system required the filtration of around 130 micron, that is 120 meshes or higher. Okay, that filters may also specified maximum particle size will pass it in micron. तो ये देखो, जब भी ड्रिप इरिगेशन में हम फिल्ट्रेशन यूनिट डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के लिए हमें क्या, फिल्टर की साइज देखनी पड़ती है, फिल्टर का टाइप देखना पड़ता है, और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड होती है, जो भी वाटर क्वालिटी होगी। और तो वाटर क्वालिटी में कौन से पैरामीटर आते हैं, देयर आर डिफरेंट particulars or different elements which are involved in the water. Okay, irregular impurities हो सकती है, biological impurities हो सकती है, physical impurities हो सकती है, chemical impurities हो सकती है, that may lead to clogging problem in a drip irrigation system. Okay, clogging problem in a drip irrigation system. So you need to consider that all fact while you are designing any system. Okay, any system. Filtration types में टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है, दैट इज नॉट अ टाइप फिल्ट्रेशन टाइप। ओके, कौन सा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं आप। ओके, फिल्ट्रेशन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आया में टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं आप, वेदर यू आर गोइंग फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में कौन सा यूज कर रहे हो, सेकेंडरी में कौन सा यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। Okay, and the size of generally for most drip irrigation is required, that is 130 micron. कौन कितना micron, that is 120 mesh. Mesh क्या होता है, what we openings, mesh क्या होता है, what is meant by mesh? Mesh is nothing but the opening per square inch. Okay, एक square inch में कितनी openings होती है, that we called as mesh. Opening पर स्क्वायर इंच, इसको हम बोलते हैं मेश। सो अराउंड 120 माइक्रोन और सॉरी 130 माइक्रोन एंड 120 मेशेस और हायर, दैट शुड बी यूज्ड फॉर द irrigation system. Now a well planned drip irrigation system includes two stage filtration, as we already know that दो स्टेज में filtration होता है, इसमें main filtration that is called primary filtration and secondary filtration, that is screen filter and disk filter. Okay, ये दोनों secondary filters होते हैं, और primary filters में आपका आता है hydrocyclone filter, okay, this is primary. Now why it is requirement के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों important है। So now responsible for filtering the relatively larger particles near the water source, मतलब suppose water is lifting from the well, यहाँ पे well है, तो यहाँ पे जो भी impurities आएगी, whatever impurities coming from the water, okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो भी लार्जर इम्प्यूरिटीज होती है पार्टिकल्स, जो भी लार्जर पार्टिकल्स नियर द वाटर सोर्स में से जो भी पार्टिकल्स आते हैं लार्जर वाले, वो निकालने का काम कौन करता है? प्राइमरी फिल्टर्स करते हैं, मेन फिल्टर्स करते हैं। कंप्राइजेस ऑफ मीडिया और डिस्क फिल्टर, इसमें क्या क्या होता है? मीडिया और डिस्क फिल्टर भी आता है। ठीक है, हाइड्रोसाइक्लोन तो ज्यादा से ज्यादा हायर हायर पार्टिकल्स निकालते हैं, पर मीडिया और डिस्क फिल्टर दो नहीं लगते। Hydrocyclones and filters should be placed before the main filter in case of where the sand or heavy particles greater than 50 micron or bigger are present in the water source. ओके, मतलब ये कहाँ यूज किया जाता है हाइड्रोसाइक्लोन? अगर यहाँ पे जो वाटर सोर्स कंटेन्स दी पार्टिकल्स और दी heavy particles which are of more than 50 micron or bigger, so that should be removed in the hydrocyclone separator or hydrocyclone filter. Okay, and secondary filtration is nothing but what, that are responsible for filtering the relatively small particles. Okay, जो भी छोटे पार्टिकल्स है उसके लिए सेकेंडरी फिल्टर्स यूज किए जाते हैं आफ्टर रिमेनिंग द मेन फिल्ट्रेशन स्टेजेस। मतलब क्या कि प्राइमरी फिल्ट्रेशन में जो भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो निकलने के बाद जो भी उससे कम साइज वाले पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ निकाले जाएंगे? आपके सेकेंडरी फिल्टर्स में। एंड दिस टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर नथिंग बट द स्क्रीन फिल्टर एंड डिस्क फिल्टर, ये दो फिल्टर्स में ये तो दिस इज नथिंग बट द फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ये होता है आपका फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब भी आप कोई इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, मेन, सब मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड। तो देखो इसमें क्या होता है, हमने अभी देखो इनिशियली हमने देखा था, लेट मी सी द इनिशियली हियर, दिस इज द वेल सोर्स। वाटर सोर्स क्या होता है वो देखा था, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद पंप्स देखा, पंप्स में क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। अभी हमने देखे फिल्टर्स यूनिट, ये जो स्क्रीन फिल्टर से स्टैंड सेपरेटर, वेंचुरी, ओके वेंचुरी बाकी अपना, तो ये स्टैंड फिल्टर, ओके स्क्रीन फिल्टर, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द मेन लाइन, सब मेन लाइन और लैटरल लाइन। ओके, ये देखेंगे, ये एक एक कंपोनेंट डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है लैटरल होती है, पर लैटरल किस तरह से क्या होती है, किसमें उसमें कितना प्रेशर होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। नाउ मेन सब मेन pipes carry water through the entire irrigation system from pump through the filters walls onwards to the dripper। ठीक है, ये क्या होता है, पाइपलाइंस क्या होती है जनरली, जिस पाइपलाइन वो भी देखो कोई भी हो, दैट इज नथिंग बट द पाइपलाइन। आप जहाँ पे भी देखो वहां पे पाइप यूज होता है। ठीक है, सिर्फ मेंस के लिए आपका पाइप अलग होगा, सब मेन के लिए अलग होगा और लैटरल के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टाइप, मतलब टाइप अलग अलग होता है, पर जनरली क्या होता है पाइप में से ही पानी कैरी होता है। ओके, वट एवर फिल्टर्स आर देयर, वट एवर वॉल्व्स आर देयर, whatever drippers are there, the all water is carried through the pipeline. Now the all pipelines and fittings should be properly sized। Okay, जो भी pipeline आप यूज कर रहे हो, जो भी fittings आप यूज कर रहे हो, that should be properly in size to withstand maximum operating pressure। Okay, तो operating pressure आप maximum उसका उसको होल्ड करना चाहिए एंड कन्वे वाटर विदाउट एक्सेसिव प्रेशर और लॉस ऑन। ठीक है, वाटर कैसा होना चाहिए, कन्वे कैसा होना चाहिए, दैट इज विदाउट एक्सेसिव pressure loss or that is nothing but the water that is main that is now PVC pipe may use throughout the system। okay, PVC pipe use किए जाते हैं throughout the system और combined with the steel piping at the pumping station। जो भी pumping station होता है वहां पे you will get the some steel piping। okay, जैसे कि कास्ट आयरन के पाइप सबको दिखने को मिला। PVC pipe, polyethylene pipe are used for submain and distribution। PVC polyethylene, देन LLDP, LDE, ओके ये भी यूज किए जाते हैं। LLDPE, LDPE, ओके, तो ये आपको कंसिडर की जाती है और ये यूज की जाती है जनरली पाइप्स। नाउ इफ यू गो फॉर सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ओके सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, the pipeline is more difficult to assess and repair। So now while fitting you have to make sure all installation can be significant with repair issues later। ठीक है, मुझे मीन्स क्या होता है, अगर आप सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के लिए जाते हो इन केस ऑफ मेन, सब मेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन, so now what happens in subsurface irrigation, the irrigation system is installed beneath the ground। okay,
इरिगेशन सिस्टम क्या होती है, ग्राउंड के नीचे होती है. सो यू नीड टू बी ensure that whatever fittings or whatever accessories you have used, that should be properly fit, because if there is an issue, if there is an issue is rising, so it will be so costly to repair and maintain that all. Okay, so this is most important thing that you have to consider while you are going to design or install a subsurface irrigation system. Now particulars attention required, especially after initial growth stage of the crop. Okay, particularly you need to focus on initial stage of the crop. जो भी crop आप लेने वाले हो उसकी initial stages में आपको पता नहीं पड़ती, फोकस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और अटेंशन देना पड़ता है. Now in irrigation design, pipe size are specified based on economic, friction loss, water handling consideration, flushing concern. Okay, pipe size increases, friction loss decreases. Okay, but initial part decreases. You have to remember this fact that as the pipe size increases, friction loss decreases. The pipe का size increase होगा, friction loss का होगा decrease होगा. That is reducing the pumping cost, and initial cost is also increasing. So these points we need to consider in case of the submain vein. Now irregular field shapes are common. Okay, and due to the topography and property boundaries, at the planning stage, care should be taken to a properly sized submain and distribution. Distribution lines means what? Nothing but the laterals. Okay? That we got. ये क्या होते हैं आपकी laterals ही होती है. Where field shape varies. Field shape क्या होता है? Vary होता है. Submain and distribution and irregular shape fields are designed based on the actual flow rate of the drip laterals. ये किस पे किया जाता है? जो भी distribution lines होती है, okay, जो और drip laterals, तो उसके flow rates based not on the flow rates, but not on an average flow rate of the system. क्या होता है? When you are going to when you are going to here the in case of the irregular shape of the in case of the irregular shape of the fields, okay, you need to be designed that field that system submain and distribution lines are based on the flow rates of the drip laterals. Okay, distribution lines means what? The water is flowing from pump. Okay, pump से आता है filtering unit में, तो distribution line हो जाती है. Okay, so this is nothing but that completely depends upon the what is the flow rate of the drip laterals and not the average flow rate of the system. मतलब average flow rate that is completely based on what? जो भी flow rate है आपका drip lateral का उस पर depend होता है. The piping system must be designed not only to allow the flow rate necessary for normal irrigation, but also allow sufficient flow rate for proper flushing velocities in the system. Okay, so when just not design this piping system, back flushing is important. Flushing करना भी बहुत important है. Why flushing is necessary? To remove the impurities. Okay, जो भी impurities सिस्टम में उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बैक फ्लशिंग भी करनी पड़ती है. ओके, तो वो मेंटेन करने के लिए, वो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? वी कैन गो फॉर दैट सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इज the flow rate should be sufficient for proper flushing velocities in the system. ठीक है, flushing velocities उसमें properly होनी चाहिए. तो ये important thing होती है while we are designing or while we are planning for drip irrigation system. Now the cross section of the pipe. What actually the cross section of the pipe? Okay, so now here the this is the pipe. एक pipe है, consider करो. Here it is your pipe. It has two diameters. Okay, एक होता है inner diameter और ये होता है आपका outer diameter. Okay, this is outer diameter. So outer diameter क्या होता है? The pipe this diameter is the distance between the outside of the wall measured perpendicular to the pipe axis. Okay, जो भी pipe होगा उसके axis ये pipe है. Consider this is the pipe. ये क्या है? Pipe है. इसका पर ये outward
आउटलेट डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर क्या होता है, दैट शुड बी मेजर्ड और द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड वॉल, मतलब ये जो आउटसाइड वॉल होती है पाइप्स की, ओके, ये दोनों का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज योर व्हाट, outside diameter, and that is measured perpendicular to the axis of the perpendicular to the axis, ये जो होता है पाइप, ये होता है आपका पाइप का एक्सिस, ठीक है, ये होता है। तो इसको परपेंडिकुलर जो मेजर किया जाता है वो आपका आउटसाइड डायमीटर होता है, और इनसाइड डायमीटर क्या होता है, इट इज द डायमीटर दैट डिस्टेंस बिटवीन द इनर वॉल्स, जो भी दो इनर वॉल्स होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है यहाँ से ये एरो वाला, दैट इज योर इनर डायमीटर एंड दैट इज जनरली मेजर्ड विद द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस क्या होती है दिस मच, ये जो है ना यहाँ पे थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है, ये क्या होती है, दिस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप सेक्शन। नाउ ड्रिप लैटरल्स, मेन सब मेन हो गया ड्रिप लैटरल्स। अभी ड्रिप लैटरल्स क्या होता है, these are the heart of drip irrigation system, okay, and in irrigation system, in any irrigation system the design process starts at the plant and proceed to the drip lateral design, ठीक है, प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपका प्लांट स्टार्ट होता है और प्लांट आपको कल्टीवेशन करना है, एंड प्रोसीजर विद द laterals, okay. Now it is important to know what take into consideration during the drip lateral design. Drip lateral selection, wall thickness, dripper flow rate, spacing between the drippers, spacing between the laterals, and specification of drip laterals insert in the insertion depth, ठीक है। तो ये चीजें क्या करनी पड़ती है, कंसिडर करनी पड़ती है, कौन सी कंसिडर करनी पड़ती है, while we are designing a drip lateral, okay, जब भी हम डिजाइन सिस्टम करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कंसिडर द प्लांट, क्या करते हैं, कौन सा प्लांट यूज करते हैं, विच प्लांट वी आर गोइंग टू यूज, बेस्ड ऑन दैट वी डिटरमाइन वाटर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दैट क्या करते हैं हम वाटर रिक्वायरमेंट उसकी डिटरमाइन करते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, और कौन से कंसिडरेशन, व्हाट कंसिडरेशन वी आर गोइंग टू कंसीडर, दैट इज ड्रिप lateral, ड्यूरिंग ड्रिप lateral डिजाइन, ड्रिप lateral सिलेक्शन, व्हिच काइंड ऑफ lateral is there, whether you are going for LLDP, whether you are going for LDP, okay, then thickness of the wall, what is flow rate of the drippers, what is the spacing between the two drippers, okay, ये दो ड्रिपर में का स्पेसिंग कितना है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन द ड्रिप laterals, जो भी ड्रिप laterals है, ओके, उसमें क्या स्पेसिंग है, रो टू रो स्पेसिंग कितनी हो सकती है, और specification of the drip lateral with insertion of the depth, what kind of depth of water you need to be there required for the system, ये चीजें हमको क्या करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती है, इट इज इम्पोर्टेंट, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट इज ड्रिपर्स, the drippers are incorporated at uniform spacing along the drip line that is delivered water and nutrient directly to the plant. Dripper का role क्या होता है, these are the devices, okay, these are the devices connected attached in a, these are the devices attached in a drip laterals, okay, drip laterals होती है, और drip laterals में क्या आपके ड्रिपर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, देखो ये ड्रिप laterals है इस तरह से, okay, ड्रिप lateral कंसीडर करो, यहाँ पे एक तो इन इस तरह से कनेक्ट होती है, और समटाइम्स इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट होती है, और यहाँ पे आपका बटन होता है, ठीक है, तो ये होता है, तो इसका दैट इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर यूनिफॉर्म स्पेसिंग, दो ड्रिपर में का स्पेसिंग कैसे होता है, यूनिफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप होता है, एंड दैट इज डिलीवर्ड, दैट इज अटैच्ड टू बी attached in a drip line, or that is the lateral line, and that delivers water and nutrient directly to the plant, okay, जो भी plant को zone में directly nutrients क्या किए जाते हैं, delivered किए जाते हैं। A typical drip irrigation system includes thousands of drippers, okay, हजारों drippers यूज किए जाते हैं कोई भी irrigation system में, and each dripper should have durable resistance to clogging, emit the same amount of water, wide water passage guarantee, long term और trouble free performance, ओके, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, ड्रिपर को परफॉर्म करनी पड़ती है, बिकॉज अगर क्लॉगिंग हो गई, सपोज इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अगर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ इंस्टॉल कर ली, कुछ ड्रिपर्स में क्लॉगिंग हो गई, ठीक है, इफ देयर इज अ क्लॉगिंग, सो देयर इज अ चांस ऑफ फ्लो रेट, नॉट नो प्रॉपर फ्लो रेट, अगर फ्लो रेट प्रॉपर नहीं हुआ तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा,
तो कहीं पे क्लॉगिंग हो गई, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, कंसिडर करनी पड़ती है व्हाइल यू आर डीलिंग विद द ड्रिपर. नाउ हियर रेजिस्टेंस टू क्लॉगिंग, देन emit the same amount of water, आप इमिट कर सकते हैं. एंड वाइड वाटर पैसेज और गारंटी, मतलब वाटर पैसेज आपको देना पड़ता है. एंड गारंटी फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल परफॉर्मेंस, जो भी होगा ड्रिपर का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए. फ्लोरेट एंड स्पेसिंग ऑफ द ड्रिपर इज इंपॉर्टेंट टू इन डिटरमाइनिंग वेटिंग पैटर्न. व्हाई फ्लोरेट एंड स्पेसिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट इज अ वेटिंग पैटर्न. ठीक है, मतलब वेटिंग पैटर्न क्या हो सकता है, अगर सपोज आपने यहाँ पे ड्रिप है, ओके, ये लाइन है, यहाँ पे ड्रिपर्स है, तो इसका वेटिंग पैटर्न कितना है, ठीक है, किस तरह से ये फील्ड को वेट करेगा, कितना वेट करेगा, ये इस पे डिपेंड होता है. ठीक है, फ्लोरेट स्पेसिफिक इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेटिंग पैटर्न एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ और डीप परकोलेशन. ठीक है, जो भी डीप परकोलेशन और रन ऑफ होने वाला, अभी है ना, यहाँ पे अगर रन ऑफ होगा तो रन ऑफ क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से. पानी क्या होगा, अगर ज्यादा पानी होगा तो वो क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से. तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, फ्लोरेट अगर और स्पेसिंग दोनों की क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. A properly operated and maintained purification system provide water and nutrient to the crop roots without runoff or without percolation. ठीक है, डीप परकोलेशन और ड्रीप परकोलेशन आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है और देखनी पड़ती है व्हेन वी आर सिलेक्टिंग अ ड्रीपर. ठीक है, ड्रीपर के बारे में इंफॉर्मेशन है. अभी दो टर्म्स होती है, यूनिफॉर्मिटी एंड इफिशियंसी. अभी इसका सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लो कि क्या होता है, इफिशियंसी क्या होती है और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है. फिर यूनिफॉर्मिटी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम डिटेल्स ये देखेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्मिटी. में सेव वाटर एंड फर्टिलाइजर एंड इम्प्रूव द yield. यूनिफॉर्मिटी क्या करती है, if your system has a proper uniformity coefficient and proper efficiency, that the yield and the fertilizer application is also improve, also your water saving is done. So that's why uniformity is most important in case of the dripper. जो भी dripper यूज कर रहे हैं उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए. Efficiency saves resources. Okay, if your proper efficiency of, if you maintain the proper efficiency of the system, so it saves the resources, preserve the environment, and while optimize the serving the crop needs. Okay, जो भी optimum requirement है crop की उसको आपको क्या करना पड़ेगा, serve होगी if you properly maintain the drip irrigation drippers of the system. अगर आपने properly drippers maintain किए तो ये चीजें आपको देखने को मेंटेन करनी पड़ेगी. ठीक है, सो नाउ वी गो फॉर द ड्रिपर्स. ओके, ड्रिपर्स कौन से होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरली. ये तो हो गया, दिस इज अगेन रिपीट, ये रिपीट हो गया क्या, ओके, ये रिपीट हो गया. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रिपर्स जनरली, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग एंड दिस इज प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, दैट इज कॉल्ड पीसी ड्रिपर. ओके, तो प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग एंड नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर्स क्या होता है, देखो. So now these non-pressure drippers are the supply of flow rate. Okay, are the supply of flow rate that is based on working rate. इसमें क्या होता है, नॉन प्रेशर ड्रिपर्स में जो भी फ्लो रेट होता है दैट इज डिपेंड अपॉन वर्किंग प्रेशर, मतलब कितना वर्किंग प्रेशर है. And here the drippers flow rate, pipe diameter and dripper spacing determine the pressure head loss and the water flow within the drip line. मतलब जो भी ड्रिप लाइन होगी उसमें जो भी फ्लो रेट होगा, डायमीटर होगा और स्पेसिंग होगा, ये क्या डिटरमाइन करता है, प्रेशर हेड लॉस. प्रेशर हेड लॉस कितना है वो ड्रिपर लाइन में वो डिटरमाइन करता है. Now difference in topographic height also affect the system. If there is a difference in the height of the field, suppose अगर फील्ड आपका प्रॉपर नहीं है, टोपोग्राफी ज्यादा है, ओके, तो वहां अगर आप सपोज यहाँ पे इलेवेशन है और इस तरह से पानी जा रहा है, तो इट आल्सो अफेक्ट द performance of the system. So that's why you need to consider the non-pressure compensated or drippers or compensating drippers. So these two factors produce small differences in dripper flow rate within the same dripper line. If the dripper flow rate, pipe diameter, dripper spacing determine the pressure head that is within the flow line. Okay.
प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में क्या होता है, एज लॉन्ग एज वर्किंग प्रेशर रिमेन्स विद इन द अलाउेबल प्रेशर। ओके, अभी देखो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग और प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, ये क्या होता है, इसमें जो भी फ्लो रेट होता है, ओके, ये वाले ड्रिपर्स, ये जो ड्रिपर्स होते हैं नॉन पीसी ड्रिपर्स, इसमें जो भी प्रेशर, इसमें जो भी फ्लो रेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, दैट इज अकॉर्डिंग विद दी वर्किंग प्रेशर, कितना वर्किंग प्रेशर है। ओके, मतलब फील्ड की टोपोग्राफी किससे, उसके डिपेंड कर। यहाँ पे क्या होता है, दैट इज प्री डिटरमाइंड, ऑलरेडी हमने अलो कर दिया होता है कि इतने रेंज में प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये रेंज में प्रेशर ऑपरेट करना चाहिए, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, हम ऑलरेडी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये डिजाइन पे डिपेंड होता है। ओके, अगर आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग यूज करते हो तो वैसे रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ती है, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वैसे रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ती है। Now PC dripper provide uniform irrigation by maintain a constant flow rates regardless of working pressure। इसमें देखो यहाँ पे सारी चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। इरिगेशन भी क्या होता है, यूनिफॉर्म अप्लाई किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ओके, रिगार्डलेस ऑफ वर्किंग। A diaphragm is activated by the continual differential pressure created by the dripper labyrinth, thus maintaining constant dripper flow इन अ वाइड प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर फ्लो क्या होता है, वाइड ड्रिपर रेट में मेंटेन किया जाता है इफ डायफ्राम इज प्रोवाइडेड। अभी देखो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग एंड नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में देखो, ये देखो हियर दिस इज द पीसी ड्रिपर एंड हियर इट इज द डायफ्राम। ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम पता है ना आपको, यहाँ से एक फ्लूइड आता है, इसमें से क्या फ्लूइड जैसे आता है, इसमें से क्या होता है, वो हाई प्रेशराइज होके और क्या होता है, फिल्टर होके निकलता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है, प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर। दो टाइप के जनरली कौन से यूज किए जाते हैं मार्केट में, तो जनरली प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग इज यूज। ओके, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज pressure compensating drippers when the land slope is greater than 2%। okay, 2% से ज्यादा अगर स्लोप हो तो आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर्स हो। देयर इज टोपोग्राफिकल वेरिएशन अलोंग द ड्रिप लाइंस, जो भी ड्रिप लाइंस और लैटरल सर्विस में टोपोग्राफिकल वेरिएशंस आपको मिलेगी, सो यू कैन गो टू दैट। और लॉन्ग ड्रिप लाइंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है ड्रिपर्स में तो आप उसमें प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर्स आप जा सकते हो। देन क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू द एक्सेसिव एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन। ठीक है, और ऐसा एरिया जहाँ पे क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव है फॉर एक्सेसिव और इनसफिशिएंट, अगर ज्यादा इरिगेशन हो गया तो वो भी सेंसिटिव है, अगर कम इरिगेशन हुआ तो भी इनसफिशिएंट है, तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर यूज कर सकते हैं। इन ऑर्चर्ड्स वेयर poor irrigation uniformity would causes inequality, okay, in a growth of individual perennial plants. Longer the plant life, greater the disparity within the individual plant. Now perfect water distribution and uniformity is required। जहाँ पे perfect water distribution हमें चाहिए और uniformity चाहिए, तो that where we can go for pressure compensating drippers। and this system or the selection of the dripper is completely according to the need of the project or according to the characteristics। okay, although it is up to the grow to decide which type of the dripper to use for specific crop। okay, कौन से क्रॉप के लिए ये ड्रिपर यूज करना चाहते हैं उस पे स्पेसिफिक। अगर फ्रूट्स क्रॉप आप यूज करते हो तो आपको ऑनलाइन ड्रिपर्स भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बाद में देख लेंगे कि ऑनलाइन इनलाइन ड्रिपर्स क्या होता है। ठीक है, नाउ वाटर मीटर एंड प्रेशर मीटर। वाटर मीटर एंड प्रेशर मीटर क्या होता है, वाटर मीटर क्या करता है, that water meter provides the water application that is essential for irrigation scheduling। okay, water meter का main role क्या होता है, that is the that provides the information regarding water application, मतलब क्या वाटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, and it is essential for irrigation scheduling for monitoring the drippers clogging। and propeller meters are most common type of agricultural प्रोपेलर टाइप जो वाटर मीटर होते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए और ड्रिप इरिगेशन के लिए। दैट वाटर मीटर इंस्टॉल एट द हेड ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्मॉल वाटर मीटर प्लेस एट द हेड ऑफ द सिलेक्टेड ड्रिप लाइन कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ
ड्रिपर्स क्लॉगिंग। ओके, ये सारे वाटर मीटर क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। इफ देर इज if if there is variation in flow, okay, if there is variation flow within a week or within two, so there is some clogging problem। ये आप जनरल फैक्ट ध्यान में रखो। ओके, टेक्निकली आप देखें, अगर वाटर मीटर के फ्लो में अगर एप्लीकेशन रेट में अगर आपको कुछ वेरिएशन दिख रहा है 1 या 2 वीक में, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि देयर इज अ क्लॉगिंग प्रॉब्लम इन द ड्रिप सिस्टम। ओके, तो ये जो वाई water meter is installed especially installed क्यों किया जाता है, because this water system has a meter and pressure gauge working order, although these gauges are often overlooked, not maintained। These are the monitoring devices, okay, and that is essential for proper system operation। मतलब हमारी जो भी सिस्टम है वो proper operation में है या नहीं, that we are going to consider। and the system flow rate helps to detect the leakages। देखो सिस्टम का फ्लो रेट है, फ्लो रेट क्या करता है, जो भी लीकेज और क्लॉगिंग होने वाली एंड मस्ट बी नोन टू डिटरमाइन एप्लीकेशन रेट फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग पर्पस। ये सारी चीजें किसके लिए चाहिए, इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए चाहिए। एंड दीज आर ऑल मॉनिटरिंग डिवाइसेस व्हिच वन वाटर एक होता है, वाटर मीटर एक होता है और प्रेशर गेज, ठीक है। एंड दिस सिस्टम पर प्रेशर आल्सो हेल्प टू डिटेक्ट द लीकेज एंड क्लॉगिंग। ओके, दैट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग फिल्टर्स। देखो प्रेशर सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं, कि जो भी फिल्टर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, और केमिकल्स हम इंजेक्ट करते हैं और होल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उसका रेंज डिटरमाइन करने के लिए हमें प्रेशर गेज चाहिए। लीकेज और क्लॉगिंग के प्रॉब्लम के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर मीटर चाहिए। ओके, दैट इज इंस्टॉल्ड। ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये आपके पास ये वाटर मीटर है, यहाँ पे प्रेशर गेज है, ठीक है। प्रोपेलर टाइप वाटर मीटर ज्यादा यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ द इरिगेशन सिस्टम और इन केस ऑफ द एग्रीकल्चर। नाउ मेक श्योर दैट द पाइप इन विच द वाटर मीटर इज इंस्टॉल्ड इज ऑफ फुल फ्लोइंग। मतलब जब भी जहां पे भी आप वाटर मीटर इंस्टॉल कर रहे हो, सी हियर पहली पहली स्लाइड में देखिए क्या है, कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है वाटर मीटर, कहाँ पे वाटर मीटर, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे तो नहीं। ठीक है, फ्लोरेट्स ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाटर मीटर इंस्टॉल कर दोगे जहां से हमारे ड्रिप इरिगेशन कहाँ से इवेंचुअली इंजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप वाटर मीटर इंस्टॉल कर लो, ठीक है, हेड पे इंस्टॉल कर लो। तो आपको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर फ्लो रेट वेरिएशन मिल रहा है, आपको फ्लो रेट में वेरिएशन मिल रहा है और एप्लीकेशन रेट में वेरिएशन मिल रहा है, ये चीजें एक बार नहीं, आप सपोज आप तीन तीन दिन आपने फ्लो रेट मेजर किया और आप बोलोगे क्लॉगिंग, नहीं ये नहीं, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। यू कैन गो फॉर मैक्सिमम डेज, 1 वीक एटलीस्ट 1 वीक के लिए आप क्या करो, ये ऑब्जर्वेशन करो। ओके, 1 वीक के लिए आप क्या करो, ये ऑब्जर्वेशन करो, आपको फिर नोटिस होगा वेदर देयर इज क्लॉगिंग और नॉट इन द इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। where we are clogging system, so where that water should be fully flowing। Okay, the water flow fills the entire cross section of the pipe without एयर पाइप। मतलब फुल्ली फ्लोइंग कैसी कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे वाटर मीटर इंस्टॉल कर लिया इस तरह से वाटर मीटर, तो ये जो पाइप है कंप्लीटली क्या होना चाहिए, फुल्ली फ्लो होना चाहिए, फुल फुल फ्लो होना चाहिए। देयर इज नो एयर पॉकेट। ओके, मतलब जैसे अगर इफ इट इज मूविंग हाफ, तो देयर इज एयर, यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। एंड देयर इज नॉट अ एक्सेसिव टर्बुलेंस इन द पाइप, और जो भी टर्बुलेंस होगा वो कम होना चाहिए, ज्यादा टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए पाइप ना। To detect the clogging or leakage in the irrigation system, check the flow rate in the system weekly। देखो वीकली क्या करो, वीकली आपको क्या करना चाहिए, जो भी फ्लो रेट होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। डिक्रीज इन फ्लो रेट ओवर द टाइम में इंडिकेट क्लॉग। अगर फ्लो रेट जैसे जैसे आप वीकली ऑब्जर्व कर रहे हो और फ्लो रेट डिक्रीज होते जा रहा है, तो इट इंडिकेट दैट देयर इज द क्लॉगिंग। क्या इंडिकेट करता है, क्लॉगिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉगिंग को डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली फ्लो रेट को चेक करना पड़ेगा। फ्लो रेट चेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फ्लो रेट क्या चेक करने के बाद आपको जैसी वेरिएशन मिला फ्लो रेट में, जब जैसे कि डिक्रीजिंग फ्लो रेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको दैट आइडेंटिफाई द क्लॉगिंग प्रॉब्लम। नाउ प्रेशर गेज आर essential component in irrigation that provide a visual providing visual information concerning the irrigation system, that
helps in detection of leaks, clogging, and the management of filters, chemical injections, that is keeping the system for its operating arrangement. Okay, क्यों मेंटेन करता है? जो भी सिस्टम्स होगी, जो भी इंजेक्टर केमिकल इंजेक्शन हम करने वाले, जो भी मैनेजमेंट करने वाले फिल्टर का, दैट शुड बी विद इन द permissible limit, or that is in operating range. Now different walls are generally used. Okay, walls भी use किए जाते हैं. So irrigation, in irrigation system, water flows and pressure throughout the system should be precisely controlled to ensure the efficient and timely water application. Therefore proper selection and placement of wall is critical. ठीक है, अगर irrigation system आप डिजाइन कर रहे हो तो control of sufficient control of pressure and flow rate. ओके, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये किस पे डिपेंड होती है? दैट इज टाइमली वाटर एप्लीकेशन रेट, एंड फॉर दैट वी नीड टू गो फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द balls or placement of the ball. So ball play a key role in controlling the pressure, flow and distribution under the different conditions to optimize the performance, facilitate management and reduce the maintenance requirement. Okay, ये चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, और walls, with the help of walls we can determine that. Now there are generally 4 types of wall used in a drip irrigation system. That is wall is there, butterfly, gate wall and globe wall. ठीक है, तो ये walls देखेंगे. ये देखो इस तरह का वॉल देखा है आपने? हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ वॉल? दैट इज बॉल वॉल. तो इसमें एक बॉल होता है, ठीक है, इसमें एक बॉल होता है. So these walls are quarter turnover. Okay, quarter turnover. इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं. इस तरह से जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है, इस तरह से, और ये तो है ऑर्डर. Okay, now these wall are closing mechanism. Is a spherical ball with the port through the middle connected to a lever line with it that shows the ball position. देखो अभी ये wall है, तो इसमें देखो इन्होंने क्या बोला, what is indicate? Here it indicate that this wall contain a spherical ball. Okay, यहाँ पे क्या होता है? spherical ball होता है, spherical ball होता है, और ये इसका लीवर होता है. That is nothing but the lever. ये क्या होता है? लीवर होता है, and that is connected to a lever. तो ये connected है, and that lever indicate the position of the ball. ये लीवर की पोजीशन है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या है? पैरेलल है तो क्या है? Now rotating a lever turns the ball so that when the port is in line with the pipe, the flow will occur. ठीक है, अभी ये बॉल में देखो, कोई भी बॉल अगर आप यूज कर रहे हो, अगर ये पाइप, दी लीवर इज इन पैरेलल टू दी पाइप, ये लीवर अगर इसको पैरेलल है, ठीक है, इसको पैरेलल है, तो वॉल क्या है? फ्लो अंडर ओपन है, और हम बोल सकते हैं कि फ्लो इसमें क्या होने वाला है? होने वाला. देयर इज अ फ्लो इन अ वॉल. एंड व्हेन परपेंडिकुलर टू द पाइप, अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब आप क्या करो, इसको क्या करो, इस तरह से टर्न कर देंगे, तो ये क्या होगा? दैट इज ब्लॉक, मतलब ये क्लोज है, यहाँ से पानी नहीं जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा? क्लोज हो जाएगा. and designed to be fully open and closed and is not suitable for regulating, ठीक है, रेगुलेट फ्लो करने के लिए किया जाता है. डिजाइन टू बी फुल्ली एंड ओपन और क्लोज. ये जो जनरली क्या जाता है, एक तो फुल्ली ओपन होना चाहिए या फुल्ली क्लोज होना चाहिए. ओके, फ्लो रेगुलेट करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बॉल समझ में आ गया? बॉल सिर्फ आपने देखा ही होगा, पर उसमें वर्किंग क्या होता है, क्या किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट. तो रिमेंबर दैट व्हेन the lever of the ball is parallel to the pipe, then flow will occur, or that is we call as open wall कर सकते हैं. Okay, if it is perpendicular to the pipe, so we consider that is closed. ये क्या है? Closed है, हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. Now next is butterfly ball. ये बॉल देखा होगा आपने, butterfly ball. अभी butterfly ball is a quarter turn ball. ये भी उस तरह quarter turn ball होता है. Operation is similar to that of ball wall. देखिए, similar to the ball wall. The closing mechanism takes the form of disc position in a center line. Okay, closing mechanism क्या होता है? ये जो disc होती है here. See here it is the disc. ये क्या है? Disc है. So this disc position is center. ये disc की position क्या होती है? Center होती है. ठीक है. A rod is connected to the lever press. एक rod connect होता है लीवर प्रेस के लिए, ये rod है और ये लीवर प्रेस है. लीवर
passes through the middle of the disc. Okay, this is rotating the lever, turn the disc either parallel or perpendicular. ठीक है, जैसे आप लीवर को रोटेट करेंगे तो डिस्क क्या होगी, रोटेट होगी. Okay, that may be either parallel or perpendicular to the flow. Unlike the ball valve, the disc is always present within the flow. Therefore, slight pressure drop is always introduced in the flow, and regardless of the valve position. Designed to be fully open and closed, not suitable for regulating. These are not generally suitable for flow, for regulating the flow walls. Okay, so here these are some walls. Then gate walls. Okay, gate walls है, उसके बाद gate wall. ठीक है, gate wall. Here the gate wall are open here. Okay, gate walls are open by lifting a gate wedge. Okay, lifting a gate wedges out for the path of the flow. ठीक है, जो भी स्लुइस, इसको स्लुइस वॉल भी बोले. ये वॉल आपने जनरली देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, जहाँ पे एक आपका वाटर गेट होगा, मतलब मेन कैनल है और मेन कैनल से अगर आप वाटर फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप वाटर फोर्स ले रहे हो तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे इस तरह से बड़े वॉल्स देखने को मिलते हैं. And when gate wall is fully open, there is no obstruction. There is no obstruction. Okay. Here, when the gate is fully open, there is no obstruction in the flow. ठीक है, अगर ये gate fully open है तो flow में obstruction नहीं है, resulting in very low friction loss and designed to fully open and close, not suitable for regulating the flow. ठीक है, ये flow rating regulate करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता. Now check walls, one way check walls होते हैं. The function of this check wall is to prevent the flow of in an opposite direction to the desired to that of desired, and it is सर्व वेरियस पर्पसेस. चेक वॉल भी यूज किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी वाटर बैक फ्लो होने वाला है, मतलब आप सिस्टम में अगर फ्लो इस डायरेक्शन से होने वाला है, अगर आप सिस्टम क्लोज करोगे, ठीक है, अगर आप सिस्टम क्लोज करोगे तो देयर में भी चांस ऑफ व्हाट, तो अगर आपने सिस्टम क्लोज कर ली तो उसमें सक्शन हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से सक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो भी वाटर होगा तो क्या होगा, पीछे आ सकता है. तो उस तरह से वो फ्लो को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक वॉल इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं. सो दीज आर इंस्टॉल एट द आउटलेट ऑफ द पाइप दैट वाटर दैट पंप्स द वाटर टू द फील्ड एट हायर एलिवेशन. ठीक है, हायर एलिवेशन में वाटर क्या होता है, पंप क्या होता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है दैट प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम द बैक फ्लो ऑफ द वाटर. ठीक है, जो भी बैक वाटर होने वाला है उसका उसको कंट्रोल करता है. इंस्टॉल एट द आउटलेट ऑफ द फिल्टर. ठीक है, फिल्टर के आउटलेट को इंस्टॉल किया जाता है विच कन्वेज वाटर टू अ हायर फील्ड. ओके, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग बैक थ्रू द सिस्टम हेड कंपोनेंट, जो भी हेड कंपोनेंट उससे प्रिवेंट करने के लिए. इंस्टॉल अपस्ट्रीम फ्रॉम द डोजिंग यूनिट. जो भी डोजिंग यूनिट हो, डोजिंग यूनिट क्या होता है, देखो जैसे कि हम नाइट्रेशन करते हैं और केमिकेशन, जो भी फर्टिलाइजर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डोजिंग यूनिट. तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, उसका भी कुछ डिजाइन होता है, तो हम देखने वाले. टू प्रिवेंट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर सोर्सेस. ओके, इंस्टॉल क्या किया जाता है, इंस्टॉल फ्रॉम अपस्ट्रीम डोजिंग यूनिट and that prevent fertilizer and chemical infiltration of the water and install on the inlet of the pipe. जो भी पाइप का इनलेट है वहां पे इंस्टॉल किया जाता है एज अ फुटवॉल, इनेबल्स प्राइमिंग टू द इनलेट पाइप. ठीक है, तो वहां पे चेक वॉल क्या किया जाता है, इंस्टॉल किए जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन. तो ये था आज का कंप्लीट सेशन अबाउट द